Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let's understand today data sources in credit risk. This is very important topic as we must know what exactly are the data sources and from where we can pull out data. So let's get started. So basically when banks approve the loan, they are actually making a prediction. They are actually making a prediction. What prediction they are making? Will this customer repay the loan or default? So to make this prediction, banks build credit risk models. For this prediction, banks build credit risk models. But a model is only as good as the data being used to build it. The data is correct, data is appropriate, so model building is correct. So the big question is, what exactly the question comes up? Where do banks get this डेटा फ्रॉम बैंक्स को ये डेटा मिलता कहाँ से है सो इन टुडेज वीडियो विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट सोर्सेज यूज्ड इन credit risk modeling, how banks collect data, and how each data source helps in predicting the default risk. So our main target is to understand the default risk with the help of proper data. And by the end of this video, you will clearly understand the entire data ecosystem behind the credit risk models. So, why data sources matter in credit risk? Why exactly they matter? So, credit risk models, what they estimate? Credit risk models estimate risk. Credit risk models estimate, we all know PD, which is probability of default, LGD, लॉस गिवन डिफॉल्ट, ये सब हम एस्टिमेट करते हैं, एंड ईएडी, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट. These three things are being estimated by a credit risk model. So these predictions, what exactly these predictions depend on? They depend on the historical data about the borrowers. Historical data about borrowers. So the model tries to learn patterns such as model learns patterns such as example customer with high credit utilization will default more. जिसका ज़्यादा utilization होगा, the model should assume that that person will have a tendency to default more. Customers with many late payments, अगर late payments हैं, obviously that is customer is risky. एंड अगर स्टेबल इनकम है किसी का, कस्टमर्स विद स्टेबल इनकम, so that customer is less risky comparatively. So to make this prediction, model needs large volume of data. Large volume of data is required so that हमारा estimation bias ना रहे. So for this, banks use three main categories of data. Three main categories of data sources. First is internal bank data. अगर कस्टमर ऑलरेडी अगर बैंक के साथ एसोसिएटेड है तो उसका कुछ ना कुछ डेटा बैंक के पास रहेगा. नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल क्रेडिट ब्यूरो डेटा. एक्सटर्नल क्रेडिट ब्यूरो डेटा, बाहर से हम उसका डेटा जो है मंगवाते हैं. हाउ एग्जैक्टली इज ही परफॉर्मिंग आउटसाइड द बैंक और मे बी विद अदर लेंडर्स.
Third, the most important is alternative or थर्ड पार्टी डेटा. ये हम देखेंगे आगे इस डेटा के बारे में क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. सो पहले हम बात करते हैं इंटरनल बैंक डेटा. अगर कस्टमर ऑलरेडी बैंक के साथ एसोसिएटेड है तब वो कैसा बिहेव कर रहा है. सो बेसिकली दिस इज द प्राइमरी डेटा सोर्स बाय बैंक, इंपॉर्टेंट सोर्स है यूज्ड बाय बैंक. एंड इंटरनल डेटा कम्स फ्रॉम द बैंक्स ओन सिस्टम. बैंक्स के खुद के सिस्टम्स में जो पड़ा हुआ है उस कस्टमर का डेटा. And it contains the information about existing and past customers. Past customers का डेटा हमारे बैंक के पास रहेगा, प्लस एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का भी डेटा रहेगा. So what can be the examples of this kind of data? What can be the examples? तो फर्स्ट हम बात करते हैं लोन एप्लीकेशन डेटा. लोन एप्लीकेशन डेटा हर लेंडर के पास होता है. लोन एप्लीकेशन डेटा क्या होता है? ये डेटा सो बेसिकली व्हेन अ कस्टमर अप्लाइज फॉर अ लोन, जब वो लोन के लिए अप्लाई करता है, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन लाइक एज. अगर हम किसी भी जगह जाएंगे और हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमसे क्या पूछेंगे? एज, ऑक्यूपेशन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, सैलरीड है कि बिजनेस है, या फिर हम कह सकते हैं SEMP, सेल्फ एम्प्लॉयड. हमारा एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस, कहाँ तक हमने पढ़ाई की है, एजुकेशन लेवल. दीज वेरिएबल्स, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हम कहते हैं एप्लीकेशन वेरिएबल्स. एप्लीकेशन वेरिएबल्स. एंड इनमें से जो वेरिएबल्स हमारे डिराइव्ड होते हैं वो हमारे क्या बन सकते हैं? जो भी हमने पैरामीटर्स देखे उसमें हमारे वो वेरिएबल्स क्या बन सकते हैं? कस्टमर अंडरस्कोर एज, एनुअल इनकम. ये वो पैरामीटर्स हैं जो हम मॉडल बिल्डिंग के टाइम पे डिफाइन करते हैं. एम्प्लॉयमेंट का टाइप, रेजिडेंशियल स्टेटस, खुद का घर है, रेंटेड पे है, ईयर्स एट, कितने साल से वो काम कर रहा है, ईयर्स एट करंट जॉब. सो these are very few examples for the application scorecard variables. One can add more there. These are sample variables. तो application scorecard में कस्टमर आया आपके पास तो ये उसके लिए वेरिएबल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइप कैन बी ट्रांजैक्शन डेटा. So banks also use account transaction history. अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, बैंक्स के पास ये डेटा रहता है और वो इसको भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मंथली डिपॉजिट्स वो कितना कर रहा है, कितनी सेविंग्स है उसके पास, सैलरी क्रेडिट, सैलरी टाइम पे क्रेडिट हो रही है या नहीं, कैश विड्रॉल्स, कितना उसकी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए वो निकाल रहा है, स्पेंडिंग पैटर्न्स, खर्च करने का तरीका कैसा है, EMI पेमेंट्स, कुछ ऑलरेडी उसमें लाइबिलिटीज चल रही है या नहीं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें कैश फ्लो बिहेवियर कस्टमर का पता चलता है. अब इसमें से हम क्या वेरिएबल्स डिराइव कर सकते हैं? वेरिएबल सच एज एवरेज बैलेंस, कितना रहता है उस कस्टमर के अकाउंट में, नंबर ऑफ डेबिट्स, कितने डेबिट्स उसने, कितने पैसा उसने और निकाला है, नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस.
बेसिकली पेमेंट बिहेवियर हम उसका देख रहे हैं, कैश फ्लो साइकिल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मंथली एक्सपेंसेस उसके क्या है, मंथली स्पेंड। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है जो बैंक्स के पास ऑलरेडी डेटा होता है, विच इज लोन परफॉर्मेंस डेटा। लोन का कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, and this is the most critical data for modeling. Why? Because it tells लोन का परफॉर्मेंस से कि कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है या नहीं किया, कस्टमर डिफॉल्टेड और नॉट। सो इसमें एग्जांपल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल वेरिएबल्स कैन बी डेज पास्ट ड्यू, उसका डेलिंक्वेंसी स्टेटस क्या है, डेलिंक्वेंसी स्टेटस, कितने उसने पेमेंट्स, नंबर ऑफ मिस पेमेंट्स, कितने पेमेंट्स उसने मिस कर दिए हैं, एंड डिफॉल्ट का फ्लैग, उस कस्टमर के कस्टमर के साथ क्या एसोसिएटेड है, डिफॉल्ट फ्लैग। सो बेसिकली बैंक्स यूज दिस टू क्रिएट द टारगेट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक ने बोला default is equal to 1 if customer is 90 plus DPD। बैंक ने वो डेफिनेशन डिफाइन करा। So default meaning default is equal to 1 if a customer is 90 plus DPD and default equal to 0 otherwise. So this historical performance data is what allows the model to learn the patterns. Next is the customer relationship data. Next data that we can find, हमें जो बैंक से लेंडर्स के पास जो मिल सकता है वो है कस्टमर रिलेशनशिप डेटा। इसमें हम क्या देखते हैं, बैंक्स ऑल्सो ट्रैक हाउ लॉन्ग a customer has been with them, कितने टाइम से वो उनके साथ एसोसिएटेड है। So for example, it can be tenure with bank. The variables can be tenure with bank. Next, it can be number of products. Number of products, or it can be account age, कितने टाइम से अकाउंट जो है कस्टमर ने ओपन किया हुआ। क्रेडिट कार्ड लिमिट, क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल वेरिएबल्स फॉर द कस्टमर रिलेशनशिप डेटा। कस्टमर्स विद लॉन्गर रिलेशनशिप्स ऑफन हैव लोअर रिस्क। तो अगर कस्टमर का रिलेशनशिप ज्यादा है, लॉन्गर रिलेशनशिप है विद लेंडर, इसका मतलब ये हम मानते हैं कि वो लोअर रिस्क पे है, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक एसोसिएटेड है, इसका मतलब उसमें उसकी पेमेंट्स टाइमली चल रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटा कैटेगरी that we have seen in the past is credit bureau data. क्रेडिट ब्यूरो डेटा विच इज द एक्सटर्नल डेटा सोर्स, बाहर से जो हम डेटा उठाते हैं, एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सो बैंक्स आल्सो यूज डेटा फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरोज। क्रेडिट ब्यूरोज कलेक्ट बोरोइंग हिस्ट्री अक्रॉस ऑल द बैंक। बाहर उस लेंडर का, बाहर वो लेंडर कैसे एसोसिएटेड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स चल रही है बाहर, बोरोइंग हिस्ट्री अक्रॉस ऑल द बैंक्स। तो ये डेटा हमें ब्यूरो से मिलता है। सो बेसिकली इन इंडिया मेजर क्रेडिट ब्यूरोज इंक्लूड ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स and CRIF high mark. These are the major credit bureaus in India, and these bureaus maintain the credit history.
इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री होती है सबके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए भी एंड बिजनेसेस के लिए भी। सो ये क्रेडिट ब्यूरो हमें कैसा डेटा देते हैं? व्हाट एग्जैक्टली द डेटा दे प्रोवाइड? डेटा फ्रॉम क्रेडिट ब्यूरोज। किस तरीके का डेटा ये हमें देते हैं? तो फर्स्ट इज द क्रेडिट स्कोर। उस बोरोवर का क्रेडिट स्कोर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इन जनरल जो रेंज होती है वो हमारी 300 to 900 होती है। तो अगर लेट्स से उस कस्टमर का 800 समथिंग वो स्कोर है, तो हम ये कहते हैं कि जितना अच्छा स्कोर होगा, हायर द स्कोर, मीनिंग लोअर डिफॉल्ट रिस्क, उसके डिफॉल्ट होने के चांसेस कम। नेक्स्ट हमें डेटा ब्यूरो से मिलता है वो है क्रेडिट हिस्ट्री। इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है कि उसने कितने लोन्स ले रखे हैं, ऑल लोन्स टेकन, क्रेडिट कार्ड्स, कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके पास, उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी चल रही है, रीपेमेंट हिस्ट्री, लोन क्लोजर्स, और प्रीवियस में उसने कोई लोन क्लोज कराए हैं अभी। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ एक्टिव लोन्स, करंटली उसके कितने एक्टिव लोन चल रहे हैं, ये सब हमें ब्यूरो से मिल जाता है। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है उसका, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या है, ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइज होगा तो कस्टमर जो है अच्छा नहीं है। नेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन गेट फ्रॉम द ब्यूरो इज डेलिंक्वेंसी रिकॉर्ड्स। ब्यूरो के पास ये सब डेटा होता है, डेलिंक्वेंसी रिकॉर्ड्स। इसके अंदर हम क्या ट्रैक करते हैं? वी ट्रैक लेट पेमेंट्स, if any default has happened in the past or not, कोई सेटलमेंट हुआ है क्या किसी और लेंडर के साथ इन द पास्ट, या फिर राइट ऑफ्स, कस्टमर जो है बहुत ही पुअर बन चुका है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से नंबर ऑफ 30 DPD इन लास्ट 12 months में 30 DPD वो कितनी बार हुआ है? दिस मीन्स नंबर ऑफ 30 प्लस डेज पास ड्यू ऑन 12 months, जिससे हम ट्रैक कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल डेलिंक्वेंसी को मेजर कर देगा। नेक्स्ट काइंड ऑफ डेटा दैट वी कैन गेट फ्रॉम द ब्यूरो इज क्रेडिट इंक्वायरीज। So whenever a customer applies for a loan, a credit inquiry is generated. जैसे ही लोन के लिए आप अप्लाई करोगे तो एक क्रेडिट इंक्वायरी जनरेट हो जाएगा। सो एग्जाम्पल वेरिएबल्स कैन बी इंक्वायरीज, कितनी बार उसने पूछताछ करी है इन लास्ट 3 months, एंड कितनी बार उसने पूछताछ करी है इन लास्ट 6 months। क्योंकि ये इस तरीके के वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज मेनी इंक्वायरीज में इंडिकेट क्रेडिट हंग्री बिहेवियर which means it increases risk। अगर ज्यादा इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट अभी करंट सिनेरियो में उसकी ज्यादा है तो उसका मतलब हो सकता है कि उसके पास पैसा रीपे करने के लिए ना हो, तो इसलिए रिस्कीनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पब्लिक डेटा सोर्सेस, ये भी डेटा सोर्सेस यूज होते हैं। Banks sometimes use publicly available data, and these sources provide additional information about borrowers. So, for example, that data sources can be
गवर्नमेंट डेटाबेसेस। अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट डेटाबेसेस की क्या मतलब हो गया यहाँ पे, लेट्स से टैक्स रिकॉर्ड्स। कस्टमर के टैक्स रिकॉर्ड्स क्या हैं, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन डेटा। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये सब डेटा हमें उस कस्टमर का मिल सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल जीएसटी का डेटा या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग्स, income tax filing, and these data helps, these kind of data helps validate income, कस्टमर की इनकम, और अगर वो बिजनेस पर्सन है तो उसकी बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि बिजनेस जो है, बिजनेस एरिया जो है बहुत ही अनसर्टेन होता है, तो उसमें उसकी क्या एक्टिविटी चल रही है। नेक्स्ट डेटा टाइप कैन बी public from the public source, it is the court records. बैंक्स ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई उस बोरोवर पे कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट्स, कोई बैंकरप्सी फाइलिंग तो नहीं हुई है उस कस्टमर के अगेंस्ट में, या फिर उस कस्टमर के अगेंस्ट कोई फ्रॉड केस तो नहीं चल रहा है, फ्रॉड केस। इन सभी डेटा से हमें ये हेल्प मिलता है, वी कैन डिटेक्ट वेदर दैट कस्टमर इज अ हाई रिस्क बोरोवर और नॉट। एंड जनरली ये सब जो एक्टिविटी होती है वो बिजनेस साइड पे ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर कोई बंदा सैलरीड पर्सन है तो हम उसकी सैलरी और उसके बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू हम उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और बिजनेस साइड पे ट्रैक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है। The third type of data source that we talked about is the alternative data sources. Alternative data source. So traditional models जो होते हैं वो जनरली ब्यूरो और बैंक का डेटा यूज करते हैं, लेकिन आज के टाइम में मॉडर्न जो फिनटेक लेंडर्स हैं they use the alternative data. एंड ऑल्टरनेटिव डेटा जो होता है वो उन कस्टमर्स को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है who have thin credit history, जो ज्यादा टाइम से एसोसिएटेड नहीं है और उनका ब्यूरो साइड में भी ज्यादा डेटा नहीं हमारे पास है। सो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्स यूज करते हैं। तो ये हम किन के लिए यूज करते हैं, कस्टमर्स, फॉर द कस्टमर्स who never took a loan before, या तो ये हो सकता है कि कस्टमर ने पहले कभी लोन लिया ही नहीं है, ये उसका फर्स्ट लोन है, या फिर जैसा हमने बात करी दे हैव हु हैव नो हैविंग नो क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड। सो आइए देखते हैं इनके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डेटा। थिन फाइल कस्टमर्स के लिए हम कहां से डेटा उठा सकते हैं। फर्स्ट इज यूटिलिटी पेमेंट डेटा। यूटिलिटी पेमेंट डेटा, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, या फिर मोबाइल रिचार्ज, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान डेली में यूज करता है। इंटरनेट बिल्स, इंटरनेट बिल पेमेंट्स। सो कंसिस्टेंट पेमेंट बिहेवियर अगर इसमें रहता है, कंसिस्टेंट पेमेंट बिहेवियर अगर रहता है, it indicates financial discipline। कस्टमर अपनी रोज की जरूरतों के लिए डिसिप्लिन से टाइमली पेमेंट्स कर रहा है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्स कैन बी ई-कॉमर्स डेटा। E-commerce data. Some lenders they analyze
ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, परचेज फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, परचेज फ्रीक्वेंसी, रिटर्न पैटर्न्स. So this data is sometimes collected from partner platforms. Partner platforms can be Flipkart, Amazon, and there are many others. Third alternative data source can be the bank statement analysis. हर कस्टमर के पास अपनी बैंक स्टेटमेंट तो होती ही है. So many lenders now analyze bank statement directly, and in this they look for salary patterns. If customer is employed, expense category, उसका खर्चा कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा हो रहा है, and most important बैलेंस वेलिडिटी, उसके अकाउंट में ऑन एन एवरेज कितना बैलेंस उसके अकाउंट में रहता है. एंड दिस हेल्प्स एस्टिमेट इनकम स्टेबिलिटी. उसकी इनकम के बारे में हमें इससे पता चलता है कि वो अपने इनकम के साथ किस तरीके से यूज कर रहा है. Next data source can be mobile data. So basically some fintech apps जो होती हैं they analyze, कुछ fintech apps analyze करते हैं कि फोन का यूसेज कैसा चल रहा है, कॉन्टैक्ट नेटवर्क और SMS के ट्रांजैक्शन अलर्ट्स. ये वाला डेटा ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता है, बट हाँ कुछ मार्केट्स में इससे भी कुछ फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं. सो अनदर मॉडर्न डेटा सोर्स that exists in the market is data aggregators and open banking. आइए देखते हैं data aggregators and open banking. So another modern data source is account aggregators. So in India, this system is regulated by RBI, Reserve Bank of India, and account aggregators ये हमें हेल्प करता है. It allow customers to share the data, share their financial data. उनका फाइनेंशियल जो डेटा है वो अगर लेंडर को चाहिए तो वो सिक्योरली जो है चला जाए. एंड फ्रॉम दिस बैंक्स कैन एक्सेस, यहाँ से बैंक अकाउंट्स एक्सेस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक्सेस हो सकते हैं, बेसिकली उसकी इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस इसके बारे में पता चल सकता है, इंश्योरेंस, टैक्स रिकॉर्ड्स, इन सब के बारे में पता चलता है. एंड दिस इज डन ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज डन ओनली आफ्टर द कस्टमर कंसेंट. बिना कस्टमर के कंसेंट के थ्रू अकाउंट एग्रीगेटर्स बैंक के डेटा नहीं ले सकते हैं. सो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, कैम्स फिनसर्व. ये जो है डेटा एग्रीगेटर का काम करता है. एंड दिस इम्प्रूव्स द डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है फॉर बिल्डिंग द रिस्क मॉडल्स. सो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब बैंक जो है इन डेटा को कंबाइन कैसे करता है. हाउ बैंक्स कंबाइन all data sources. अभी हमने डेटा सोर्सेस के बारे में बात करा, और बैंक इनको कंबाइन कैसे. सो इन प्रैक्टिस बैंक्स क्रिएट अ मॉडलिंग डेटा सेट बाय मर्जिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेस. And these data sources, इन डेटा सोर्सेस के लिए हम पाइपलाइन को से समझते हैं इन डेटा सोर्सेस का. सो हमारे डेटा सोर्सेस की पाइपलाइन कैसे बन सकती है. लोन एप्लीकेशन सिस्टम,
जो कस्टमर के पास और बैंक के पास ऑलरेडी डेटा जो है, प्लस बैंक ट्रांजैक्शन डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन डेटा प्लस क्रेडिट ब्यूरो डेटा प्लस पब्लिक डेटा। ये जो सारा डेटा है ये सारा मर्ज होता है विद द हेल्प ऑफ कस्टमर आईडी। कुछ ना कुछ यूनिक की तो हमें चाहिए, कस्टमर आईडी के बेसिस पे ये सारा डेटा हम जो है मर्ज करते हैं। तो फाइनल डेटा सेट हमें कैसा दिख सकता है? फाइनल डेटा सेट एग्जाम्पल, एक हमारी कस्टमर आईडी होगी, कस्ट आईडी, कस्टमर का इनकम होगा, उसका क्रेडिट स्कोर होगा जो उसने ब्यूरो से उठाया होगा, कितने उसके लोन्स चल रहे हैं, क्या उसका डीपीडी है, और वेदर उसने डिफॉल्ट करा है या नहीं। ये डेटा हमें मिल सकता है आफ्टर मर्जिंग, एंड देन दिस डेटा इज यूज्ड फॉर मॉडल ट्रेनिंग। सो व्हाट कैन बी द challenges with क्रेडिट रिस्क डेटा? ये जो डेटा हमने उठाया, हमें इसमें कुछ चैलेंजेस भी तो आ सकते हैं। वो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, डेटा क्वालिटी issues. Data quality issues such as missing income values, incorrect bureau data, ये भी हो सकता है। और ये तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है कि इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट्स, करेक्ट फॉर्मेट्स में ही अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट चैलेंज कैन बी डेटा प्रिवेसी regulations. Data privacy regulations. So banks must follow regulations such as customer का consent, जो हमने एग्रीगेटर के टाइम पे बात किया था, कस्टमर का कंसेंट होना चाहिए, एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉज को फॉलो करना चाहिए कि उनका डेटा, कस्टमर का डेटा मिसयूज ना हो जाए, एंड स्पेशली व्हेन यूजिंग द अल्टरनेटिव डेटा, जिसमें हम यूटिलिटीज, उसके स्पेंडिंग्स, बैंक स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चैलेंज कैन बी डेटा imbalance. Data imbalance. So basically in credit risk, most customers जो होते हैं, most customers do not default. Majority of the customers जो होते हैं वो default नहीं करते हैं. So for example, 95% non-default and 5% default, and this creates imbalance. प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि जब हम इस डेटा पे मॉडल बिल्ड करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो नॉन डिफॉल्टेड है, तो ये हाई लाइकली है कि जब मॉडल प्रिडिक्ट करेगा तो वो न्यू कस्टमर को ये नॉन डिफॉल्ट असाइन कर सकता है। सो दिस क्रिएट्स, हम इसको बोलते हैं दैट दिस क्रिएट्स क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम। क्लास सही से डिफाइन नहीं है जिसको हमें बैलेंस करना है, बट सो दैट जब पॉपुलेशन, जब हमारा न्यू कस्टमर जब आए, वो मॉडल जब प्रिडिक्ट करे तो वो सही से प्रिडिक्ट करे एंड हम उस पर रिलाई कर सके। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अ बैंक वांट्स टू प्रिडिक्ट डिफॉल्ट, बैंक जो है डिफॉल्ट को प्रिडिक्ट करना चाहता है। जैसा कि हमने देखा कि कस्टमर की हम एज, इनकम, उसका स्कोर, कितने एक्टिव लोन्स चल रहे हैं उसके, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेट पेमेंट्स कितनी हुई हैं,
सम सैलरी रिलेटेड चीजें भी हम देख सकते हैं। और लेट्स से अज्यूम, हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं कि बैंक ने इन वेरिएबल्स के बेसिस पर अज्यूम किया कि पीडी जो है 8% आ रहा है। अब ये जो फाइनल आउटपुट, ये सब हम अपने फर्दर एग्जांपल्स में हम देखेंगे आगे, जो मेरा प्रॉपर पूरा एक सेशन पाइथन पे होगा जिसमें हम मॉड्यूल बिल्डिंग वगैरह हम सब देखेंगे वंस ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। इस बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करेगा कि लोन को अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, कि कस्टमर का जो प्राइसिंग है, जो उसका इंटरेस्ट रेट है, उसको जो है एडजस्ट करना है। इसीलिए डेटा सोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक जो मॉडल्स बनाता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे ही बनाता है। सो इन एन ओवरऑल समरी, टू बिल्ड द क्रेडिट रिस्क मॉडल, बैंक्स रिलाई ऑन, अभी तक हमने देखा कि बैंक्स जो है मल्टीपल डेटा सोर्सेज पे रिलाई करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज इंटरनल बैंक डेटा। मल्टीपल डेटा सोर्सेज, अभी तक हमने देखा मल्टीपल डेटा सोर्सेज एंड इंपॉर्टेंट सोर्सेज इंटरनल बैंक डेटा, क्योंकि बैंक अपने डेटा पे तो वो रिलाई करेगा ही। उसके बाद अगर उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट ब्यूरो डेटा पे जाएगा। अगर वहां पर भी उसे कुछ नहीं मिला, कि अगर कस्टमर थिंग फाइंड है, तब वो जाएगा ऑल्टरनेटिव पे। सो मॉडर्न लेंडर्स आज के टाइम में दे ऑल्सो यूज ऑल्टरनेटिव डेटा एंड ओपन बैंकिंग डेटा to evaluate customers' credit history. And these combination of all these data sources, जितने भी हमने data sources के बारे में बात की है, they help banks build more accurate models, the PD models. So, if you want to master credit risk modeling, so you need to understand the data sources, which is the very first step. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। In the next video, we will go deeper and understand how banks actually define the target variable. हमें target variable समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे वीडियो में वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी target variable, क्योंकि ये मॉडल बिल्डिंग के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। And when the series will get completed, we'll do hands-on onto some projects, so that we can collect all the points that we have discussed so far, and that too in Python. आपके अगर और भी कोई questions हैं related to today's video, you can drop them down in the comments. And if you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to my channel Risk Modeling for more insights into the credit risk. Thank you.